Hello friends, welcome back to Education on Tips. I hope you all are doing great nowadays and fantastic. So let's get started with chapter number 1 NCRT class 7 history. This is part 1 of the chapter. The chapter is tracing changes through a thousand of years. Take a look at map 1. Here, this is map 1. Map 1 was made in 1754 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. Who made the first map? Arab geographer Al-Idrisi made the first map. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in the 1720s by a French cartographer. So जो second map था वो किसके द्वारा बनाया गया था? French cartographer के द्वारा बनाया गया था. So now you all be confused that what the term cartographer meant here. So basically cartographer is meant that the art, okay, or the art of making map is known as cartography, but here we are talking about cartographer. So the person who make map is known as a cartographer. The definition is also given at the side, so you can understand from there also. The two maps are quite different even though they are of the same area. In Al-Idrisi's map, South India is where we would accept to find North India and Sri Lanka is the island at the top. Means जो ये map है इसमें हमें क्या बताया जा रहा है? What they are they wants to tell you in the book. They wants to tell you जो map 1 है, क्या आपको लग रहा है कि वो इंडिया की तरह इंडिया से मिलता जुलता मैप है? So, in my words and everyone words, this is not familiar with our map in which we are studying nowadays. This map is totally changed from today's map. Okay. We would accept to find North India and Sri Lanka, the island at the top. So, place names are marked in Arabic in the first map, like Kanuj in Uttar Pradesh, spelt in the map as Quenuj. मीन्स जो मैप 1 है एक तो ये हमारे मैप से सिमिलर नहीं है और इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी हैं लाइक द स्पेलिंग ऑफ नेम्स एंड मैनी अदर टू. So, map 2 was made nearly 600 years after map 1. So, this is map 1 basically. Map 2 was made after 600 years after map 1. During which time information about the subcontinent had changed considerably. मतलब उस टाइम तक 600 ईयर्स में टाइम के साथ साथ हमारी चीज़ें चेंज होती हैं. हमारी कल्चर में चेंज आ सकता है, हमारी लैंग्वेज, हमारी वोकैब, ग्रामर में हमारे चेंज आ सकता है. बहुत सारी चीज़ों में हमारा टाइम के साथ चेंज आता ही आता है. ये आप कह सकते हो कि ये एक रूल ही है नेचर का कि भाई थोड़े टाइम के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती ही हैं. जैसे कि प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, ग्रामर चेंज हो जाती है, थोड़ी थोड़ी टर्म्स चेंज हो जाती हैं. वो भी हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. सो मैप 1 ड्यूरिंग विच टाइम अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कॉन्सिडरेबली. This map seems more familiar to us. Yes, the map 2, this is map 2 here, it is looking familiar with our map. इंडिया का मैप ऐसे ही है. इफ़ यू हैव एन लिटिल बिट कन्फ्यूजन, सो हमारा आज का मैप कुछ इस तरह से दिखता है. एट द टॉप देर आर श्रीलंका. उस जो हमने पहले मैप 1 पढ़ा था वहाँ पे तो टॉप पे श्रीलंका दिया था, है ना. बट दैट मैप वॉज टोटली नॉट फेमिलियर विद अस. बट यहाँ पर तो पहले लद्दाख है, देन वी हैव जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर स्टेट्स. सो this map seems more familiar to us, and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. मतलब कि जो एरियाज़ हैं उनके नेम को मतलब बहुत अच्छे से डिटेल किया गया है, उन पे फोकस किया गया है, उनकी स्पेलिंग्स पे, उनके सारे उनको लिखने पे उन पे फोकस किया हुआ है. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. See chapter 6. So about voyage we are going to study in chapter 6. So जो ये मैप है वो जो ये मैप है हमारा मैप 2, ये यूज़ किया जाता था यूरोपियन सेलर्स के द्वारा
सेलर्स मैप को क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली उनको शिप के थ्रू ट्रैवल करना होता है, सी रूट्स के थ्रू, तो उनको मैप की नीड पड़ती है कि इंडिया के हमें पोर्ट कहाँ है, हमें कहाँ पर अपनी शिप को स्टैंड बाय करना है ना। सो ये हमारा इंडिया का आज का मैप है, और ये मैप है जो कि 1154 सी में बनाया गया था अरब जियोग्राफर अल इदरीसी के द्वारा। सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन 2 पीरियड्स। ये हमें भी पता चल रहा है कि जो कार्टोग्राफी की जो साइंस है वो 2 पीरियड्स में, मतलब 600 ईयर्स के बाद कितनी ज़्यादा चेंज हो गई। स्पेलिंग्स पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया, हमने उनको डिटेलिंग्स इतनी अच्छे से दी उनको, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं। When historians read documents, जब हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं, मैप्स को रीड करते हैं, टेक्स्ट को करते हैं, अब वो क्यों करते हैं? देखिए, स्टोरी जो हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जो हम हिस्ट्री ये बुक में पढ़ रहे हैं, ये मतलब हमारे पास फ्लाई करके तो नहीं आएगी, किसी ने ढूंढा है, someone has researched on the history, that's why only we can learn और and understand history nowadays। मतलब कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, हिस्टोरियन कौन होते हैं? जो कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सो दे आर हिस्टोरियंस। ओके, सो हेयर हिस्टोरियंस ने क्या क्या करते हैं? हम हिस्टोरियंस को हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है? जब वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, पास्ट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, मैप्स को पढ़ते हैं, टेक्स्ट को समझकर उनके बारे में वो रिसर्च करते हैं, तब वो श्योर हो जाते हैं कि भाई उनको मैच करना पड़ता है बहुत सारा, देन दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू आर सेल्फ। ओके, सो इन हमें यही बोला जा रहा है कि जो हिस्टोरियंस है, हिस्टोरियंस है, उनको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है सारी चीज़ों पे कि कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग तो नहीं है, उनको बार बार उस चीज़ को समझकर पढ़कर उस पर ध्यान दे के ही वो एक राइट डिसीजन लेते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। अब टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब होता क्या है? टर्मिनोलॉजीज़ को हम वोकैब कह सकते हैं। ओके, मतलब कि नई और पुरानी वोकैबलरी। If the context in which information is produced changes with time, what about language and meaning? मतलब कि चलो वो तो ठीक हो गया कि information जो प्रोड्यूस हुई है वो टाइम के साथ चेंज होती है, बट लैंग्वेज और मीनिंग्स का क्या वो भी चेंज होते हैं? सो ऑब्वियसली वो भी चेंज होते ही होते हैं। ओके, अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको पढ़ेंगे। सो लेट्स रीड। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस। हमें पता है कि हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो बहुत लैंग्वेज में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, पर्शियन में, फ्रेंच में, हिंदी में, इंग्लिश में, जर्मन में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में डिफरेंट में वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता कि आपको सिर्फ जो है हिस्ट्री वो इंग्लिश में ही लिखनी है, टाइप करनी है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। आप किसी भी लैंग्वेज में अपनी जो आपको फेवरेबल लैंग्वेज है उसमें आपको हिस्ट्री लिख सकते हो आप। ओके, so historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the period, over many years you can say. So here medieval Persian, जो मतलब जो मिडल पर्शियन होते हैं, मतलब पर्शियन पीपल फॉर एग्जाम्पल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। हाँ, ऐसा तो है, मतलब नाउ वी ऑल आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, बट जो हमारा मेडिवल पीरियड का जो पर्शियन होगा वो आज के टाइम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। अब वो कैसे डिफरेंट होगा? वो कल्चर के बेसिस पे हो सकता है, लैंग्वेज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वोकैबलरी, डिफरेंट थिंग्स पे वो हमसे चेंज होगा। इवन क्लोथिंग पे भी वो हमसे काफ़ी डिफरेंट होगा, है ना। So the difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meanings of words also change over time. Okay, so important points को आपको underline करना है so that you'll get help when you are doing your practice or revision for the examination. Take the term Hindustan for example. अब हिंदुस्तान को हम क्या मानते हैं? इंडिया मानते हैं। It is used for our country, that is India. Take the term Hindustan for example. Today we understand it as India, the modern nation state. When the term was used in the 13th century by Minhaj Siraj, a chronicle. अब chronicler कौन होता है? जो कि हिस्ट्री के बारे में लिखता है, ठीक है ना।
ओके, अ पर्सन हु राइट्स रिगार्डिंग हिस्ट्री, हु रॉट इन पर्शियन, ठीक है. He meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and the Yamuna. मीन्स वो हिंदुस्तान शब्द को किस चीज़ के लिए यूज़ करता था, जो कि एरिया के पंजाब और हरियाणा के बीच में, और मतलब कि वो उसको पॉलिटिकल सेंस में यूज़ करता था, और लैंड्स के लिए यूज़ करता था, फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमेन्स ऑफ द Delhi Sultan. The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए हमारे हिंदुस्तान टर्म को हमने यूज़ किया, बट कभी भी साउथ इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए हमने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ नहीं किया. ठीक है. सो विद द एक्सटेंट ऑफ द दिल्ली सुल्तान, the term never included South India. By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography. मतलब कि जियोग्राफी, जो फोना एंड फ्लोरा हमारे आसपास के पेड़ पौधे, जियोग्राफी को उसको मतलब उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसने हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया. द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, as we will see later in the chapter, that was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusrai used the word Hind, while the idea of a geographical and cultural entity like India did exist. मतलब कि 14th सेंचुरी में एक पोएट थे अमीर खुसराऊ, सॉरी, यूज़ द वर्ड हिंद. मतलब कि उन्होंने हिंद वर्ड को यूज़ किया था. किसने? अमीर खुसारा ने. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट अंडरलाइन इट. यूज़ द वर्ड हिंद. While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, मतलब उस आइडिया को भी exist वो होता था. The term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associated with today. मतलब पहले कभी भी हिंदुस्तान वर्ड को पॉलिटिकल सिटी कंट्री पॉलिटिकल सेंस में, नेशनल पॉलिटिकल सेंस में कभी भी यूज़ नहीं किया गया था जैसे हम उसको आज यूज़ करते हैं. Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. Take, for example, a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not an Indian. ऐसे यूज़ होता है, वो हम आगे की वीडियो में पढ़ते हैं. सो दिस वॉज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 NCERT क्लास 7. इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली